Good afternoon, students. Welcome to the lecture number 1 from the chapter of electric charge and field. Today we will be discussing about electric charge and the topics which we will cover under this heading is static electricity. What is an electric charge? What are the properties of an electric charge? What are the different methods of charging an object? And what are conductors and insulators? So स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे. विंटर सीजन में जब आपका पर्टिकुलरली व्हेन द एटमॉस्फेयर इज ड्राई, हम लोग स्वेटर्स पहन के जाते हैं ऑफिस में और थ्रू आउट द डे वी आर वर्किंग एंड ड्यूरिंग द entire day what happens, there is a rubbing action between the skin and the sweater. ये एक rubbing action होता रहता है. उसकी वजह से क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके जो स्किन के ऊपर वो स्वेटर्स के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये होते रहते हैं दिन भर. इवनिंग में जब आप आते हैं, जब आप स्वेटर को निकालते हैं तो यू हियर अ चैटरिंग साउंड. समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स वी हियर इट, समटाइम्स वी डोंट हियर इट. सो जब वो चैटरिंग साउंड किस लिए होती है कि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपके स्वेटर के ऊपर एक्यूमुलेट हुआ है, इट गेट्स डिस्चार्ज थ्रू आवर बॉडी इनटू द ग्राउंड. ओके, सो डिस्चार्ज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आवर बॉडी और थ्रू एनी कंडक्टर गिव्स राइज टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, or we can say that static electricity is the discharge of free electrons through any conductor. Second point, what is an electric charge? So electric charge क्या है? Electric charge basically are the free electrons which are moving in a random fashion on the surface of a conductor. अब ये जो free जो electrons हैं, they are also called the conduction electron because they are responsible for the conduction of electricity. मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू ए हायर पोटेंशियल एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू ए लोअर पोटेंशियल. अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा. Electron will flow from a lower potential to a higher potential and the current will flow from a higher potential to a lower potential. इसीलिए करंट का जो डायरेक्शन है वो आपका ऑपोजिट हो जाता है. So the direction of the current is opposite to the direction of the flow of electrons. So ये आपका this is the definition of an electric charge in a this is a very short description of an electric charge. Now let's come to the properties. Properties में क्या है कि first property is that charge cannot be created or destroyed. यहाँ पे की बुक्स में हमने पढ़ा ही है. Then second thing is that like charges, first is charge cannot be created or destroyed. Second thing is like charges repel each other और unlike जो charges होते हैं they attract each other. ठीक है, attract each other, ये तो सब लोगों को पता ही है. Now third, the fourth property is that is called the addition of charges. Now addition of charges means how we have to add the total charge which is existing on the surface of the body. Let us say मैं कहता हूँ कोई एक छोटा सा ये बॉडी है, इसके यहाँ पर एक चार्ज है आपका प्लस क्यू, यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पे आपका प्लस 2q, यहाँ पे आपका है प्लस 3q, यहाँ पे मैं कहता हूँ माइनस लेट अस से 4q. So the total charge which is available on the surface of this body is equal to the algebraic sum is equal to the
algebraic sum of all the charges on the surface of the body. That is, algebraic sum के मतलब ये है कि whenever we are adding these charges, the addition has to be done with the proper sign. Proper sign का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर total charge इस body के केस में क्या हुआ, एक तो प्लस क्यू हो गया, ठीक है. अगर ये आपका माइनस क्यू है, then we have to write here माइनस क्यू. algebraic sum के मतलब ये है कि we have to carry out the addition with the proper sign. अब यहाँ पे फिर प्लस टू क्यू हो गया, ये आपका माइनस फोर क्यू प्लस थ्री क्यू है लिखा हुआ है, ये यहाँ का माइनस फोर क्यू, तो यू हैव टू राइट हियर माइनस, ठीक है. सो 1 2 3 4 5 1 2 3 सो तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, ये तो कैंसिल हो जाते हैं. 3 + 2 5 क्यू माइनस 4 क्यू, दैट इज इक्वल टू क्यू. सी द टोटल चार्ज on this body is equal to Q, or we can say that this is a positively charged body. ठीक है. This is how we have to carry out the addition of charge on any body. Now third is, the last property of charge is the quantization of charge. Quantization of charge. The quantization charge means the first point, the transfer of charge from one body to another will be an integral multiple of E. The transfer of charge from one body to another will be an integral multiple of E. Where E is the charge on an electron. ठीक है, which is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. So the transfer of charge from one body to another will be an integral multiple of E, where E is the charge on an electron, which is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Second, the charge on any body, that is the total charge. The total charge on any body will be an same thing, integral multiple of E. In other words, it implies that the total charge which will be transferred from one body to another, or the total charge which will be available on the surface of body, it will be equal to Q is equal to NE, where N is an positive or negative integer. ठीक है, और E क्या है? E is the value of charge on an electron, which is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. मतलब ये है, सीधा मतलब ये है कि जब भी कोई चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या द टोटल नंबर चार्ज विच विल एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी, दैट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई. मतलब अगर ट्रांसफर होगा, मान लीजिए मैं कहता हूँ एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये दो बॉडीज हैं ए और बी. अब यहाँ से मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इधर, मतलब यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो गया लेट से ए से बी, तो क्या होगा? चार्ज लेट से मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, तो क्या होगा? चार्ज जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो एक होगा या दो होगा,
3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे ही होगा ना। ये 1.5 तो नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, 3.5 ये नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकते। मीन्स वॉट एवर दी ट्रांसफर ऑफ चार्ज, वॉट एवर that is the value of the charge which will be transferred will be an integral multiple of E. जितने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ए से बी में, तो जो टोटल जो चार्ज ट्रांसफर होगा दैट विल बी इक्वल टू -10E, बिकॉज व्हाई द चार्ज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, that is the charge associated with electron is denoted by -E and the charge associated with the proton is denoted by +E. so अगर 10 इलेक्ट्रॉन A से B में चले गए तो हमारा जो टोटल जो चार्ज ट्रांसफर हुआ दैट विल बी इक्वल टू -10E, where माइनस इंडिकेट्स दैट 10 electrons has been transferred from A to B, ठीक है। so this is all about the properties of charge, and now we will move on to the next topic of methods of charging. One more point, as I have just discussed, that charge on an electron is written as -E, and the charge on the proton is equal to +E. इसको ऐसे हम लोग लिखते हैं। E की वैल्यू आपको बता दी, दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। Now let us come to the fourth point, that is methods of charging. और methods of charging में हमने अभी जो बात किया वो है आपके 3 तरीके से चार्ज होते हैं। एक तो हो गया फ्रिक्शन से, जो अभी हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे जो हमने अभी डिस्कशन किया था। सेकेंड इज द कंडक्शन। कंडक्शन है, कंडक्शन में क्या होता है कि दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, ठीक है। एंड इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में क्या होता है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए ये आपका एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये आपका न्यूट्रल है, तो ये क्या होगा, हम इसको लेके आएंगे, इट विल बी ब्रॉट वेरी वेरी क्लोज टू दिस ऑब्जेक्ट बट इट विल नॉट टच दिस ऑब्जेक्ट। कंडक्शन में क्या हो जाएगा, ये हम टच कराएंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है ना टच होगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए दिस इज स्फीयर ए एंड दिस इज अ स्फीयर बी एंड इट इज न्यूट्रल एंड लेट अस से दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, ये कंडक्शन में क्या होता है, हम इसको टच कराएंगे, और इंडक्शन में क्या होगा, ये टच नहीं होगा, देयर विल बी अ सर्टेन स्पेस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट्स। सो लेट अस नॉट स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दीज 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट, फ्रिक्शन में आपको मैंने बता दिया कि वेन एवर 2 ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, देन व्हाट हैपन्स, the free electrons they get transferred from one object to the other. So for example, जैसे एक एग्जाम्पल ये किताबों में बहुत मिलता है कि एक ग्लास रॉड है, उसको हमने सिल्क के कपड़े से हमने काफ़ी जो है रब किया, रब करने के बाद में फिर हमने उसको हटा दिया। सो होगा क्या, व्हाट हैपन्स दैट हम लोग को जो एज पर दी ऑब्जर्वेशन की जो सिल्क जो कपड़ा है, हमारा ये कपड़ा है, it becomes negatively charged because free electrons from the glass rod they have got transferred to the silk cloth. Now यहाँ एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि why electrons are getting transferred to silk cloth? ऐसा क्यों नहीं है कि electrons silk cloth से लेके इसमें क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहे। So मैं इस केस में क्या है, in the case of a glass rod and silk, the silk has got a greater affinity for electrons, इसीलिए जो free electrons यहाँ पे इसके सरफेस में अवेलेबल हैं वो यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, ये बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट या आपका नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड द रीज़न फॉर दिस इज दैट सिल्क क्लॉथ हैज़ गॉट अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन में, अब कंडक्शन में वही है, एक हमने स्फीयर लिया, लेट अस से दिस इज अ स्फीयर ए, और एक हमने स्फीयर लिया बी, लेट अस से दिस इज अ न्यूट्रल स्फीयर, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल के मतलब क्या हुआ,
न्यूट्रल का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड दैट इज व्हाई दिस बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नाउ अब ये आपका जो लेट अस से दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? इट हैज गॉट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हेन आई ब्रिंग दिस object in contact with this neutral object, what will happen? This excess of electron will get transferred on the surface of this neutral object evenly. ठीक है, ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा. And because of this transfer, what will happen? This object, because now it has got an excess of electron, you have got excess of electron, so this object will become negatively charged. This object will still remain charged. Okay, this will still remain charged because some of these excess electron has got transferred on the surface of B. So यहाँ पर क्या होगा कि अभी भी लेकिन क्या होगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट some of the electron, you can say the excess electron will still remain on the surface of A. So ये आपका अभी भी this body will still remain negatively charged, but the deficiency, or you can say but the excess जो electron है जो पहले के कंपैरिजन में वो अब इसमें कम हो जाएंगे, बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बी में ट्रांसफर हो गए हैं. नाउ दिस ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ बी विल हैपन टिल द टाइम द पोटेंशियल ऑफ बोथ दीज टू ऑब्जेक्ट्स become the same. अगर जब दोनों का जो पोटेंशियल है ए और बी का, जो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, देन दिस ट्रांसफर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी विल स्टॉप. ठीक है, सो तब तक ये होता रहेगा, और इस प्रोसेस में ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया. और यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बट स्टिल सिंस इट इज़ क्या होगा कि दोनों ये इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर होते रहेंगे, और एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बंद भी हो जाएगा, व्हेन बोथ दीज सरफेसेस हैव द इक्वल पोटेंशियल. बट फिर भी ये बॉडी जो है अभी भी चार्ज रहेगी, बिकॉज इसमें फिर भी आपके कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहेंगे. सो दिस बॉडी विल स्टिल रिमेन नेगेटिवली चार्ज एंड दिस बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. सेकेंड पॉइंट अब है कि हम फिर से लेते हैं, मान लो अभी तो हमने लिया था नेगेटिवली चार्ज के लिए, मान लो ये एक है बॉडी है और ये आपका बी है, ये आपका न्यूट्रल है. नाउ इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, मान लो. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट विल हैपन, इसके सरफेस पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉडी के, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस स्फीयर. और ये क्या है, दे विल बी अ फ्लो ऑफ free electrons from the surface of B towards the surface of A, and as a result क्या होगा, जब कुछ electrons B के surface से निकल जाएंगे, then there will be a deficiency of electron, there will be a shortage of electrons. shortage of electrons. ठीक है, जब ये shortage of electron हो गया तो B क्या हो जाएगा, it will become a positively charged body. ठीक है, ये बी विल बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे आपके कुछ ट्रांसफर हुए हैं. ये दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस टिल दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस फ्रॉम बी टू ए टिल द टाइम द पोटेंशियल ऑफ दिस sphere B and sphere A are equal.
ठीक है ना। तब दोनों का आपका जो दिस पोटेंशियल है बराबर हो जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र है वो रुक जाएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ हो रहा है तो क्या होगा कि हियर बिकॉज देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अब कम हो जाएगी, बट स्टिल दिस स्फीयर विल रिमेन चार्ज, ये अभी भी चार्ज रहेगा, दिस स्फीयर विल स्टिल रिमेन चार्ज बिकॉज बस होगा क्या कि जो इसके अंदर जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, पहले ज़्यादा थी अब कम हो जाएगी क्योंकि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बी से ए में आ गए, ठीक है। अब आते हैं इंडक्शन पे। इंडक्शन में हमारा चार्जिंग कैसे होता है, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो ये आपका स्फीयर ए है और यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर एक है बी और सी, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। और ये जो है इस स्फीयर को मैं यहाँ पे बहुत ही पास में लेके आता हूँ, और लेट अस से this is a positively charged sphere. Now this sphere is brought very close to sphere B, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों स्फीयर जो है B and C both are neutral and they are in contact with each other right now. Let us say what will happen now, ये पॉजिटिवली चार्ज है, सो होगा क्या, जो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज, दे विल कम, ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसके ऊपर भी जो आपके जो नेगेटिव चार्जेस हैं यहाँ पे, दे विल बी ऑल्सो, दे विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सी एंड दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हियर, ये भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। So what will happen? Because of the transfer of free electron, because ये positively charged है, so as per the properties of charge, that is the unlike charges attract each other, so this will attract the electrons. ये जो free electrons हैं B के surface पे, they will be attracted towards this surface. C के ऊपर के surface के ऊपर जो electrons हैं, they will be attracted towards this side, ये भी इधर आ जाएंगे। तो होगा क्या, B में there will be an excess of electron, excess of electron हो जाएगा, और C में क्या है, शॉर्टेज हो जाएगा। So this will become a positively charged body and this will become a, B will become a negatively charged body, ठीक है। So this is how the bodies are charged by the induction method. यहाँ पे हमने क्या किया, टच नहीं किया है यहाँ पे, ये खाली हमने इस ऑब्जेक्ट को पास में लेके आए। So by the induction process, this sphere has become a negatively charged body, it has become a negatively charged body and C has become a positively charged body. अब हम क्या करते हैं, ये तो हुआ जब हम पॉजिटिव चार्ज लेके आए थे। अब हम यहाँ पे नेगेटिव, एक कोई बॉडी है, दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर, अब हम एक सेम चीज़ को लेके चलते हैं, मान लो ये एक स्फीयर है B है, ये भी C है। सो नाउ इट इज गॉट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो सरफेस, इसके जो सरफेस के ऊपर जो भी आपके एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस विल रिपेल this the electron, because these are the like charges, so they will repel each other, and because of the repulsive force, what will happen, these electrons will go towards the rear side of this, इस तरफ आ जाएंगे कहीं, they will get transferred from the surface of B towards the rear side on the surface of C, यहाँ पे पहुँच गए। तो जब यहाँ पे पहुँच गए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, यहाँ पे क्या हुआ, डेफिशिएंसी।
there will be a deficiency of electron in this sphere and there will be an excess of electron in this sphere. यहाँ excess electron हो गए. So what happens that when we are bringing a negatively charged sphere, means in very very close to the sphere B, then this body, that is the sphere C, is getting negatively charged because there is an excess of electron on the surface of this body, and this will become positively charged because now there is a deficiency of electron. So this is how this is how the these are the different this is how the objects are charged by way of the induction method. And in the induction method, the two objects, they don't touch each other. There is a small gap in between. In conduction they touch each other. कंडक्शन में दोनों के सरफेस दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. इंडक्शन में दोनों के सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, बट दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है. सो दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग. एंड द लास्ट पॉइंट which I want to just it is a very very small point. What are conductors and insulators? Conductors वो होते हैं which have got free electrons for the conduction of electricity. Insulators में क्या free electrons नहीं होते हैं. Insulators में जो भी आपके जो electrons होते हैं they are bound to the nucleus of the atom very tightly. So free electrons ना होने की वजह से they don't conduct the electricity. ठीक है. इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं लाइक ग्लास है, देन पोर्सलिन भी है, ठीक है ना, और वुड है. सो ऑल दीज थिंग दीज आर द इंसुलेटर्स हैं. कंडक्टर्स में क्या आपका ह्यूमन बॉडी है, आपके मेटल्स हैं, ये सब आपके कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे हैव गॉट द फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. नाउ this is a brief description about the static electricity. इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जो है इट वाज अ वेरी वेरी ब्रीफ हमने डिस्कशन किया. मेथड्स ऑफ चार्जिंग को भी हमने समझा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. एंड फाइनली कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में भी जाना कि व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. एंड नाउ सी दीज पॉइंट्स जो मैंने यहाँ डिस्कशन किया है, they are of very much relevance from the point of view of the board examination. बोर्ड एग्जामिनेशन में इन जो आज हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको MCQs के फॉर्म में भी आ सकते हैं. सो आई हैव कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास में विच आर वेरी वेरी इजी बट दे माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. जैसे कि जो हमने अभी एक एग्जांपल जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो डिस्कशन किया था और जो एग्जांपल लिया था हमने उसी का ही यहाँ पर एक उसी से ही संबंधित एक क्वेश्चन है. इसमें लिखा है इन विंटर टाइम वी टेंड टू ऑब्जर्व मोर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इन विंटर टाइम वी एक्सपीरियंस more static electricity than in summer. अब इसमें इन्होंने चार ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं. They have given four alternatives. The first is they have the alternative number one is the air is drier, which conducts the electrons very easily. Second is the air is wetter, which could transfer electrons more. And the third is the air is colder, which could transfer the electrons more easily. And the fourth option is दिया हुआ है A and C both. So यहाँ पर क्या होगा,
ऑप्शन आ जाएगा ए एंड सी बोथ, क्योंकि व्हेन द एयर इज ड्राई, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, व्हेन द एयर इज ड्राई, ठीक है, देन electrons are conducted easily। पहला तो ये है। सेकेंड है, जब एयर कोल्ड होता है, when the air is colder, when the air is colder, the electrons are transferred easily। ठीक है, ये दो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। सो इस केस में क्या है, जो है, जो चार ऑप्शन में से लिखा जो ये है, दिस इज वन ऑप्शन था, ये दिस वाज ऑप्शन नंबर ए, दिस वाज द ऑप्शन नंबर, they have given one more option also, but this is the option number C था, और एक आपका था D है, ताकि both A and C। so यहाँ पर आपका आंसर आएगा both A and C, ठीक है, because when the air is dry the electrons are conducted easily, ये होता है, and when the air is colder the electrons are transferred easily, so the option number both A and C are correct। This is one question, this was a good question। Now second question is one, I have got a couple of good questions right now। Now there is one MCQ, the question is, static electricity is produced by there are four alternative, 1 2 3 and 4। one is only induction लिखा है, second thing is there only friction, third one is लिखा है chemical reaction, and the fourth one is induction and friction, induction and friction। सो यहाँ पे आपने जैसे भी पढ़ा है, तो यू ऑल नो दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन ऑल्सो, एंड इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय इंडक्शन। ये आपका आंसर सही होगा। नाउ there is one more question, it is written charge conductor has number one has charge on the outside surface, second is surrounding, ये सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड इज मिडिल पॉइंट, एंड फोर्थ दिया हुआ है आपका इनर सरफेस। तो इसका आंसर क्या होगा? चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड सरफेस। ये भी हमने अभी अपने लेक्चर्स के दौरान में ये डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो चार्ज कंडक्टर हैज चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस। Now there is one more question which I just want to हाँ
electric charge leaks rapidly from the painted edges of a conductor. Electric charge electric charge leaks rapidly from the painted ये इसमें दिया हुआ है, यू हैव टू टेल वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है, ये आपको बताना था. सो नाउ electric charge leaks rapidly from the painted edges of a conductor. Paint क्या है? Paint is a bad conductor of electricity. ठीक है? Hence, because paint is a bad conductor of electricity, therefore the electric charges will not leak rapidly, or it will not leak from the painted edges of a conductor. So what is the correct alternative? It is B, that is false. ठीक है, paint क्या है? Paint is a bad conductor of electricity, so therefore the electric charges will not leak rapidly from the painted edges of a conductor. So the correct alternative is B, that is false. So ये मेरे पास में कुछ MCQs हैं थे जो कि मैंने आपको जस्ट यहाँ पे भी डिस्कस किया है. There are a lot of MCQs which I will try to give you in the form of the test papers in the coming sessions. But as of now, I have just tried to discuss those MCQs which were relevant to what we have discussed today. So thank you very much for joining in this lecture, and very soon I will be uploading another lecture number 2, in which we will try to solve few numerical problems based on this topic. Till then, goodbye and have a nice day. See you soon.